Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So, welcome to my new video. In this video, we are going to learn about the remaining part of the fourth lesson of history, the Mughal Empire. So, you should take your SST textbook and open your page number 48. This lesson is very long, very large. That's why there are four videos, there are four parts of this lesson. Okay. In the first video, we have seen some words and their meanings. Okay, we have understood the meanings of these words there, and especially these words used in the Mughal Empire. Okay, in the period of Mughal Empire. Then we have seen about Babur. After this Babur, we have seen the first battle of Panipat, then battle of Khanwa. After this battle, we have seen the information of Humayun. Then we have seen the information of Sher Shah Suri and his achievements. Then welfare measures. After it, we have seen the information of Akbar the Great. Okay. Then we have solved the MCQs also. After it, we have seen about the Akbar's major military campaigns. Then Akbar's policies, and these Akbar's policies we have seen in the second video. Okay. Then Rajput policy, religious policy. Then we have seen about the Tawhid-e-Ilahi. Okay. And after it, we have seen the information of Jahangir. Okay. In second video, after this Jahangir, we have seen about Jahangir and Nur Jahan. Nur Jahan was the wife of Jahangir. Okay. After it, we have seen about the information of Shah Jahan. Then we have seen English trader. Okay. Then in the third video, we have seen the information of Aurangzeb. Aurangzeb was the last ruler of Mughal Empire. Okay. Then we have seen his military campaigns. Then Deccan policy. After these Deccan policies, we have seen about the administration, position of emperor in Mughal administration. Okay. Then we have seen about the central administration, then important officials. Okay. After it, we have seen provincial administration also. Then we have seen about army administration of Mughal Empire. Then Mansabdari system. Okay. All these topics we have seen in the third video. Then we have solved the MCQs also in third video. Now in this video we will see the revenue administration. Okay, so you should take your SST textbook and open your page number 48. To sustain such a large empire, the Mughal emperor needed financial resources, and there were many functions, many works, and for these functions rulers required the money, rulers required the financial resources. Okay. For this they depended on two revenue sources, land and trade. एंड ये जो भी वहाँ पे फंक्शंस थे, जो मेंटेनेंस था, इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, और ये पैसों के लिए रूलर्स किस पे डिपेंड थे? रेवेन्यू. देयर वर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, लैंड एंड ट्रेड रेवेन्यू. ओके. मोस्ट रेवेन्यू रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट बाय एम्पियर अकबर. एंड जो भी रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, सुधारना. ओके, इम्प्रूवमेंट. तो ये कब हुए? इन द पीरियड ऑफ अकबर रिंग्स. ओके, अकबर का जो रिंग्स था, राज्य था, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, रेवेन्यू रिफॉर्म्स. गॉट इट? देन वंडरफुल टू नो. There were four types of land.
Polars was the fertile land, and during this period there were four types of lands. पोलाज वॉज द फर्टाइल लैंड, जहाँ पे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते थे. ओके, दैट वॉज ऑलवेज कल्टिवेटेड टू इल्ड गुड्स क्वालिटी क्रॉप्स. बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते थे, जो पोलाज लैंड थी. ओके, परुथी वॉज द लैंड दैट वॉज केप्ट फैलो टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी. एंड जो पोरुती लैंड थी ये फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए वैसे ही रखी जाती थी 2 या 3 ईयर्स के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड द फैलो. चाचर वॉज केप्ट फैलो फॉर 3 to 4 ईयर्स टू रीजन फर्टिलिटी. एंड जो चाचर थी ये भी वैसे ही रखी जाती थी for increase the fertility. Okay, for 3 or 4 years. And Banjar was the land that couldn't be cultivated because of its poor quality. And जो बंजर लैंड थी यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं होते थे बिकॉज ऑफ इट्स पुअर क्वालिटी. जो भी क्वालिटी थी ये बहुत ही पुअर थी, दैट्स वाई ये बंजर थी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर लैंड रेवेन्यू सिस्टम. राजा तोदरमल, Akbar's revenue minister. Who was he? Raja Todarmal, Akbar's revenue minister, was the main architect of Akbar's land revenue system. एंड ये मेन आर्किटेक्ट थे. अकबर ने जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम एस्टेब्लिश की थी, जो भी वहाँ पे रिफॉर्म्स हुए थे, इसके ये मेन आर्किटेक्ट थे. हु? राजा तोदरमल. दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज नोन एज अ तोदरमल्स बंदोबस्त. और ये जो भी यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए थे, जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसे क्या कहा जाता था? तोदरमल्स बंदोबस्त. अंडर दिस सिस्टम लैंड वॉज मेजर्ड. और ये जो सिस्टम थी तोदरमल्स बंदोबस्त, यहाँ पे लैंड मेजर्ड की जाती थी. ओके, मापी जाती थी. एंड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इट वॉज कैटेगराइज्ड एज अ गुड, एवरेज और बैड. एंड जो भी फर्टिलिटी थी लैंड की, ओके, तो फर्टिलिटी के बेस पे ये कैटेगराइज्ड की जाती थी, डिवाइड की जाती थी. कौन सी गुड है मीन्स फर्टाइल लैंड है, कौन सी एवरेज है और कौन सी बैड है. ओके, द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली. और जो भी रेवेन्यू वहाँ पे फिक्स किया जाता था वो लैंड के हिसाब से ही फिक्स किया जाता था. यानी अगर फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लगाया जाता था. अगर लैंड फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे रेवेन्यू बहुत ही कम लगाया जाता था. तोदरमल ऑर्गेनाइज्ड इट इन सच अ वे दैट ड्यूरिंग एवरी सीजन सर्वेवर्स विजिटेड द विलेज. एंड ये जो तोदरमल थे उन्होंने सर्वे ऑर्गेनाइज किए थे हर एक सीज़न में. ओके, एंड ये जो सर्वेयर्स थे ये विलेज को विजिट देते थे. दीज सर्वेयर्स मेजर द लैंड. और ये जो सर्वेयर्स यहाँ पे अपॉइंट किए थे ये लैंड मेजर्ड करते थे, लैंड मापते थे. ओके, तोदरमल रियलाइज्ड दैट ropes shrunk when dry and lengthened when wet. Hence, he introduced the bamboo reed ropes. The reeds were joined together with iron rings. This device brought about the accuracy in measurement. And जो लैंड मेजरमेंट होता था इन अर्लियर पीरियड ये कैसे होता था? रोप्स से. ओके, रोप्स यूज्ड एज अ टूल फॉर मेजरमेंट. एंड ये जो रोप्स वहाँ पे मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते थे, अगर ये ड्राई है तो वो सिकुड़ जाते थे. श्रंक मीन्स सिकुड़ना. ओके,
एंड अगर ये वेट यानी गीले है तो ये लेंथन बन जाते थे, लॉन्ग बन जाते थे। इसकी वजह से जो भी मेजरमेंट होता था यहाँ पे प्रॉब्लम होता था, ये एक्यूरेट नहीं होता था। ओके, तो ये सभी प्रॉब्लम तोदरमल को रियलाइज हो चुके थे एंड हेंस ही इंट्रोड्यूस्ड द बाम्बू रीड रोप्स, और इसी की वजह से इन्होंने बाम्बू रीड रोप्स इंट्रोड्यूस कर दिए। एंड ये रोप्स कैसे फॉर्म किए थे? द रीड्स वर जॉइंट टुगेदर, जो भी रीड्स थी ये एक साथ जॉइन किए थे विद अ रिंग, मीन्स आयरन रिंग्स, आयरन के रिंग से ये जॉइन किए थे। दिस डिवाइस ब्रॉट अबाउट एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, और इसकी वजह से जो भी मेजरमेंट हो रहा था ये बहुत ही एक्यूरेट हो रहा था। ओके, इसके पहले जो मेजरमेंट हो रहा था लैंड का ये एक्यूरेट नहीं था क्योंकि वो रोप प्रॉपर नहीं थे। अभी जो डिवाइस यहाँ पे बनाया गया था इसकी वजह से ये जो मेजरमेंट था ये एक्यूरेट हो रहा था। द दशला दाह मीन्स 10 सिस्टम वॉज अनदर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, और दूसरी सिस्टम कौन सी थी? दशला, ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी लैंड रेवेन्यू की। ओके, दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1580, और ये कब इंट्रोड्यूस की गई दशला सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम? 1580 को। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द peasants वर टोल्ड टू पे अ टैक्स that was fixed on the basis of the average produce and average price over the last 10 year, and पिछले 10 साल का जो भी प्रोड्यूस था एंड जो एवरेज प्राइस थी इसके बेस पे ये टैक्स फिक्स किया जाता था, और ये टैक्स पीजेंट को पे करना पड़ता था। यू नो पीजेंट्स मीन्स फार्मर। ओके, at the time of harvest the village headman known as the mukaddam collected the land revenue in cash or in kind and gave them receipt, and जो हार्वेस्टिंग टाइम रहता था विलेज में वहाँ पे विलेज हेडमैन, उन्हें मुकद्दम कहा जाता था। ये टैक्स रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इन कैश और काइंड, इन काइंड। ओके, कैश कलेक्ट करते थे या कुछ चीज़ें वो लेते थे पीजेंट से, एंड उन्हें रिसिप्ट दिया करते थे। ओके, आफ्टर दैट ही पेड द होल अमाउंट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, एंड उसके बाद ये जो मुकद्दम थे, हेड मैन थे विलेज के, इन्हें पूरा टैक्स स्टेट ट्रेजरी को पे करना पड़ता था। ट्रेजरी मीन्स खजीना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, economic and the social conditions. The Mughal court, a ceremonial court. The Mughal court was headed by the emperor, और जो मुगलों का कोर्ट रहता था, दरबार बोलेंगे हम इसे, तो यहाँ पे हेड कौन रहते थे, मेन कौन रहते थे? एम्पिरर, सम्राट। ओके, एम्पिरर मीन्स सम्राट। ही सैट ऑन अ मैग्निफिसेंट थ्रोन, और ये बहुत ही आलीशान शानदार सिंहासन पे बैठा करते थे। ओके, द नोबल्स सैट एंड देयर वर सम नोबल्स। यू नो नोबल्स मीन्स पावरफुल पर्सन्स फ्रॉम किंगडम, एंड ये जनरली रिलेटिव्स रहते थे रूलर्स के। ओके, एंड और सम इवन स्टूड, और कुछ नोबल्स खड़े भी रहते थे। ओके, एट अ लोअर लेवल दैन द एम्पिरर, एम्पिरर के आगे जो भी लोअर लेवल रहती थी वहाँ पे ये खड़े रहते थे, कुछ नोबल्स बैठते थे। ओके, द इम्पोर्टेंट नोबल्स सैट नियर द एम्पिरर, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोबल्स अगर है तो वो एम्पिरर के नज़दीक बैठते थे। देयर वर 2 हॉल्स ऑफ ऑडियंस, एंड वहाँ पे 2 हॉल्स थे ऑडियंस के। फर्स्ट वॉज द दीवानी खास, दिस वॉज द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, ये प्राइवेट ऑडियंस था। ओके, हियर द रिपोर्ट्स फ्रॉम नोबल्स एंड अदर हेड्स वर रीड एट एन असाइन टाइम, एंड यहाँ पे कौन सा वर्क होता था कि जो नोबल्स जो भी हेड रहते थे ये रिपोर्ट रीड करते थे। ओके, रीड करके देते थे
जो भी एम्पियर रहते थे उन्हें। नेक्स्ट, दीवानी आलम, सॉरी दीवान ई आम, दिस वॉज द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, और ये हॉल पब्लिक के लिए रहता था। ओके, द जनरल पब्लिक कुड कम एंड पुट द प्रॉब्लम बिफोर द एम्पियर, और जो भी जनरल पब्लिक रहती थी अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो वो एम्पियर के आगे अपने प्रॉब्लम्स रखती थी। ओके, सिजदाह एंड पैबोज वर परफॉर्म्ड बिफोर द एम्पियर, एंड जो सिजदाह एंड पैबोज दिस वर द सैल्यूटेशन। ओके, ये सैल्यूटेशन थे, ये यहाँ पे परफॉर्म होते थे, यानी अगर एम्पियर आते हैं, सम्राट आते हैं, तो लोग झुक के उन्हें प्रणाम करते थे। ओके, तो इसे हम बोलेंगे सिजदाह पैबोज, या कोई पैर छूते थे। ओके, ड्यूरिंग अकबर्स रिंग्स हाउएवर कुर्निश एंड द तस्लीम वर ऑल्सो परफॉर्म्ड, और अकबर का जो रिंग्स था, रिंग्स मीन्स राज्य पीरियड। ओके, अकबर्स का जो पीरियड था वहाँ पे कुर्निश एंड तस्लीम भी परफॉर्म होते थे। दीज वर ऑल्सो फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। ओके, टूवर्ड्स द 17th सेंचुरी द मुगल कोर्ट सॉ अ डिवीजन, एंड 17th सेंचुरी में मुगलों के कोर्ट का डिवीजन हुआ था। ओके, द ऑर्थोडॉक्स एंड द लिबरल्स, एंड कैसे डिवाइड हुआ था ये कोर्ट, मुगल कोर्ट, ऑर्थोडॉक्स एंड लिबरल्स। द लिबरल ग्रुप वॉज powerful during the reign of Jahangir and Shah Jahan, whereas the orthodox group was more dominant during the Aurangzeb's times, and there were Mughal court was divided into two groups in 17th century. Okay, one group was there orthodox and another group was there the liberals, and ये जो लिबरल ग्रुप था ये पावरफुल कब था, जहांगीर एंड शाहजहां के रिंग्स में। ओके, एंड ऑर्थोडॉक्स ग्रुप कब डोमिनेंट था, मोर डोमिनेंट ड्यूरिंग द औरंगजेब्स टाइम। ओके, ये ऑर्थोडॉक्स ग्रुप औरंगजेब्स के टाइम में पावरफुल था, डोमिनेंट था। ओके, नाउ last topic is here agriculture. We have to study about this agriculture. Agriculture was the primary occupation in those times, and land was the most important source of revenue, and agriculture ये primary occupation था। you know occupation means काम धंधा व्यवसाय। okay, it was a primary occupation when during the Mughal period. Okay, and land was most important source of revenue, और जो revenue collect होता था वो land से ही collect होता था। that's why this land was very very important source. Hence all rulers tried their best to raise the प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, और इसकी वजह से सभी जो रूलर्स थे मुग़ल पीरियड के, ये जो भी प्रोडक्टिविटी थी लैंड की, ये इंक्रीज़ करने में लगे रहते थे। ओके, दे इवन एनकरेज द पीजेंट्स टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर द कल्टिवेशन, और ये जो रूलर्स थे मुग़ल पीरियड के, ये पीजेंट्स को एनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन के अंडर में लाने के लिए। ओके, टू एनकरेज दिस मूव दे इवन एक्सेप्टेड पीजेंट्स फ्रॉम टैक्सेस इफ दे सक्सेसफुली डिड सो, एंड द पीजेंट्स पेड 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस एज अ रेवेन्यू, और पीजेंट्स को कितना टैक्स पे करना पड़ता था, जो टोटल प्रोड्यूस वहाँ पे होता था, जो भी टोटल क्रॉप्स उन्हें मिलते थे, ग्रेन्स उन्हें मिलते थे, उसमें से 1/3 प्रोड्यूस उन्हें रूलर्स को एज अ रेवेन्यू पे करना पड़ता था। दिस लेटर इंक्रीज टू हाफ, एंड कुछ सालों के बाद ये हाफ बन चुका था। ओके, यानी अगर प्रोडक्शन वहाँ पे होता है तो उसमें से आधा रूलर्स को देना पड़ता था।
The peasants could not be evicted from the land they cultivated as long as they paid the revenue. अगर रेवेन्यू वो पे कर रहे peasants तो वहाँ पे उन्हें लैंड उनकी छीनी नहीं जाती थी, वो कल्टीवेशन कर सकते थे. But the increasing demand for revenue rendered many peasants landless as they failed to meet the revenue requirements. लेकिन जो डिमांड वहाँ पे बढ़ती गई टैक्स की, रेवेन्यू मीन्स टैक्स, तो ये जो रेवेन्यू वहाँ पे इंक्रीज होता गया उसकी वजह से पीजेंट्स रेवेन्यू पे नहीं कर पाए, उसकी वजह से बहुत सारे पीजेंट्स लैंडलेस होते गए. ओके, दिस कैटेगरी ऑफ पुअर एंड लैंडलेस पीजेंट्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन द लैंड ओन बाय जमींदार्स. और ये जो लैंडलेस पुअर फार्मर्स थे, ये अब जो जिनकी लैंड रहती थी, जो ऑनर्स रहते थे, ज़मींदार रहते थे लैंड के, उनके लैंड पे, उनके फार्म में ये अब वर्क करने लगे. ओके, दे वर पेड इन कैश, और इन्हें कुछ कैश पे किया जाता था या कुछ काइंड. ओके, इन लीव ऑफ द हार्ड वर्क ऑन द लैंड. लैंड में जो भी वो हार्ड वर्क किया करते थे उसके बदले उन्हें कुछ सैलरी या पैसा दिया जाता था या कुछ थिंग्स दी जाती थी. ओके, नाउ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, और ये जो पीरियड था मुग़लों का, यही पीरियड में, ये अपने इंडिया में मुग़ल पीरियड था, बट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या चल रहा था ये अब हमें पढ़ना है. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम one of the great rulers of this time was Sultan Suleiman, the ruler of Ottoman Turkey, 1520 to 66. 1520 से लेके 66 तक बहुत ही ग्रेट रूलर्स थे सुल्तान सुलेमान. कहा के ओटोमन तुर्की. द ओटोमन टेरिटरी एक्सपांडेड टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बगदाद, इराक एंड मोरक्को. और ये जो ओटोमन टेरिटरी थी, ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बगदाद एंड इराक एंड मोरक्को तक एक्सपांड हो चुकी थी. इट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद स्पेन एंड पोर्तुगल ऑल्सो. द मोनार्क वॉज ऑल्सो कॉल्ड ऑल कानूनी मीन्स द लॉ गिवर ड्यू टू द नंबर ऑफ रेगुलेशन पास्ड ड्यूरिंग दिस रिंग्स. और ये जो रिंग्स था, यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस पास होने की वजह से इसे क्या कहा जाता था, अल कानूनी. ओके, द लॉ गिवर. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑन पेज नंबर 50. ओके, first, Babur fought the first battle of Panipat in 1526. And who was Babur? Babur was the founder of Mughal Empire. Okay, and he fought first battle of Panipat in 1526. Okay, then he fought next battle, the Battle of Khanwa in 1527. और 1527 में इन्होंने बैटल ऑफ खनवा लड़ी थी. एंड द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529. एंड 1529 में बैटल ऑफ खनवा हुई थी. ओके, एंड वाई दिस बैटल्स वर देयर, क्यों ये बाबर ने बैटल्स यहाँ पे लड़ी थी? टू एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी. ओके, टू शो द पावर. ओके, उनका जो भी पावर, जो भी स्ट्रेंथ था, ये शो करने के लिए इन्होंने यहाँ पे बैटल्स की थी. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, हुमायून मेड काबुल हिज बेस एंड फाइनली 1555 to 1556 he got back the throne of Delhi after the death of Sher Shah. And you know, हुमायून जो एम्पियर थे, वहाँ पे उन्हें अपना एम्पायर छोड़ना पड़ा था. ओके,
एंड उसकी वजह से ये एम्पायर छोड़ के काबुल चले गए थे। फाइनली उन्होंने 1555 टू 1556 में सिंहासन हासिल किया था दिल्ली का, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह सूरी वॉज द मोस्ट फेमस रूलर of the Sur dynasty and was a good administrator and philanthropist, but had weak successor. एंड ये जो शेरशाह सूरी थे ये बहुत ही फेमस रूलर थे सुर डिनेस्टी के, ओके। एंड ही वॉज द गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ये चलाते थे। एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, बट हिज सक्सेसर वॉज वीक, ओके। जो भी सक्सेसर थे ये वीक थे। सक्सेसर मीन्स वारिस, इनके आगे के जो उनके बेटे थे ये वीक थे, उसकी वजह से इनका एम्पायर चला गया था, ओके, आफ्टर हिज डेथ। अकबर गेव अ पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशंस ऑफ द टू द एम्पायर। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर। एंड जो अकबर का रिंग था, अकबर का पीरियड था, वहाँ पे बहुत ही पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन था, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, जहांगीर वॉज नोन फॉर dispensing justice fairly and was advised by his wife नूर जहाँ। एंड जहांगीर अपने जस्टिस के लिए फेमस थे, ओके, जाने जाते थे। वो बहुत ही अच्छा जस्टिस वहाँ पे करते थे। जस्टिस मीन्स न्याय, ओके। एंड जो भी वहाँ पे अफेयर रहता था एम्पायर का, उसमें वो अपनी जो वाइफ थी नूरजहाँ, उनकी सलाह लेते थे, उनकी एडवाइस लेते थे, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहां वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द ताजमहल स्टिल स्टैंड्स एज एन एपिटोम ऑफ हिज लव फॉर हिज वाइफ मुमताज महल। एंड ये जो शाहजहां थे ये बहुत ही ग्रेट पैट्रन थे। यू नो पैट्रन, फेवर में रहना, प्रोटेक्शन देना, ओके, उसे हम बोलेंगे पैट्रॉन्स। और ये किसके पैट्रॉन्स थे? आर्किटेक्चर के। एंड ताजमहल इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हिज पैट्रोनिज्म, ओके। जो ताजमहल बनाया गया था वो अपने वाइफ के लिए उन्होंने बनाया था, ओके। Then last point is here, Aurangzeb's tenure was marked by revolts and he became unpopular with the Sikh and the Marathas. And ये जो औरंगजेब थे यहाँ पे बहुत इनका जो भी रिंग्स था, इनका जो भी पीरियड था, टेन्योर मीन्स वर्किंग पीरियड, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते थे एंड ये बहुत ही अनपॉपुलर बन चुके थे। लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, स्पेशली विथ द सिख्स एंड द मराठा, ओके। आपने अपने यहाँ पे जो शिवाजी महाराज ग्रेट पर्सनालिटी होके गई है इन महाराष्ट्र, ओके, तो इनके अगेंस्ट थे ये औरंगजेब। बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे औरंगजेब के, जो शिवाजी महाराज के साथ हुए थे, ओके। दैट्स व्हाई दिस औरंगजेब वाज अनपॉपुलर विथ द मराठा, ओके, एंड विथ सिख्स ऑल्सो। गॉट इट। नाउ अ लेसन इज completed here. We should revise the whole lesson here, okay, because this lesson is very long. That's why we should remind it. What we have seen in the first video, we have seen about the Babur, okay. Who was Babur? Babur was the first Mughal emperor. He was the founder of Mughal empire also. Got it? And there were first battle of Panipat when in 1526 Babur faced Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat.
इब्राहिम लोदी के साथ इनकी फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की. ओके. आफ्टर इट देयर वर बैटल ऑफ खनवा. व्हेन दिस बैटल ऑफ खनवा in 1527, and this battle of Khanwa fought with राणा संघ ऑफ मेवार. किसके साथ हुई थी ये बैटल ऑफ खनवा? राणा संघ के साथ. ओके. कहाँ के थे ये राणा संघ? मेवार के. ओके. आफ्टर इट वी हैव सीन अबाउट द लाइफ ऑफ हुमायून. Information of Humayun. Okay. What was the name of this Humayun? Naziruddin Muhammad Humayun. Okay. He was the eldest son of Babur. बाबर के ये सबसे बड़े बेटे थे. Got it? And there were 3 phases of his life. In first phase, इट वॉज अ टाइम ऑफ स्ट्रगल एंड स्ट्रेस. बहुत ही स्ट्रगल एंड स्ट्रेस का टाइम था ये. उन्होंने बहुत टफ स्ट्रगल फेस की थी. ओके. अगेंस्ट शेर शाह सूरी ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात. और ये दो जो पावरफुल रूलर्स थे वहाँ पे गुजरात एंड बिहार के, इनके साथ उन्हें बहुत ही टफ स्ट्रगल करनी पड़ी इन फर्स्ट फेज. ओके. And in second phase, the Afghan king शेर शाह सूरी annexed his empire. और second phase में हमने क्या पढ़ा कि ये जो शेर शाह सूरी थे इन्होंने हुमायूं का एम्पायर एनेक्स कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था. एंड हुमायूं को अपना एम्पायर छोड़ के जाना पड़ा था फॉर 15 ईयर्स. ओके. देन थर्ड फेज. What was in third phase? What happened in third phase of Humayun life? Humayun made Kabul his base, and he made preparation to recover the lost territories in India. और ये जो शेरशाह सूरी थे, इनकी डेथ होने के बाद उनके जो सक्सेसर थे, जो वारिस थे, ये वीक थे. उसकी वजह से हुमायूं ने अपना जो एम्पायर था ये फिर से छीन लिया था शेर शाह से. ओके. वी हैव सीन अबाउट शेर शाह सूरी. एंड ये जो शेर शाह सूरी थे ये बहुत ही फेमस रूलर थे सुरु डिनेस्टी के. ओके. देन हिज अचीवमेंट. हमने शेर शाह सूरी के अचीवमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था इन फर्स्ट वीडियो. ओके. Then welfare measures. After it we have seen about Akbar. Akbar the Great. What was the real name of Akbar? Jalaluddin Muhammad Akbar was born in Amarkot at the time when his father Humayun was in exile. And किसके बेटे थे ये? अकबर हुमायूं के. और जब हुमायूं वनवास में थे वहाँ पे ही ये बॉर्न हुए थे. ओके. इन अमरकोट. ओके. देन वी हैव सीन अबाउट अकबर्स मेजर मिलिट्री कैंपेन्स. ओके. कौन से साल में कहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स लिए थे अकबर ने, ये भी हमने पढ़ा. आफ्टर इट वी हैव सीन अबाउट अकबर्स पॉलिसीज़. There were Rajput policy and religious policy. Okay. In Rajput policy की जो वहाँ पे राजपूत रूलर्स थे उनके डॉटर के साथ ये मैरिज किया करते थे मुगल एम्पियर. ओके. Which was this alliance? Matrimonial alliance. Okay. एंड ये जो राजपूत रूलर्स थे इन्हें हाई पोस्ट दी जाती थी अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन में. ओके. देन रिलीजियस पॉलिसी मीन्स जो पैलेस था अकबर का वहाँ पे
मुस्लिम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उसके साथ हिंदू फेस्टिवल्स भी वहाँ पे सेलिब्रेट होते थे. दैट वाज द रिलीजियस पॉलिसी. ओके. देन वी हैव सीन अबाउट द तौहीद इलाही. ओके. देन वी हैव सीन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ जहांगीर. जहांगीर के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा. ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर. किसके बेटे थे ये? अकबर के. ओके. एंड वी हैव सीन अबाउट द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ जहांगीर. देन Jahangir and Noor Jahan. Who was Noor Jahan? Noor Jahan was the wife of Jahangir. Okay, Jahangir की wife थी ये. And हर एक मामले में ये जो जहांगीर थे ये अपने वाइफ की एडवाइस लेते थे, बिकॉज ही शी वॉज द ब्रिलियंट विमेन. ओके. देन वी हैव सीन अबाउट शाहजहान. एंड after Jahangir's death there was a war of succession amongst his son. और ये जो जहांगीर थे इनके डेथ के बाद उनके बेटों में वॉर हुई सक्सेशन के लिए. ओके. एंड फाइनली प्रिंस खुरम सक्सेसफुली ascended the throne in 1627. और 1627 में ये जो प्रिंस खुरम थे इन्होंने सिंहासन हासिल किया था और उन्हें टाइटल दिया गया था शाहजहान, रूलर ऑफ द वर्ल्ड. ओके. देन वी हैव सीन अबाउट औरंगजेब. ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल. ओके. औरंगजेब वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आलमगीर, मीन कॉन्ग्योर ऑफ द वर्ल्ड. और औरंगजेब को कौन सा टाइटल दिया गया था? आलमगीर, मीन्स कॉन्ग्योर ऑफ द वर्ल्ड. एंड ही वॉज द लास्ट ऑफ ग्रेट मुगल्स. देन औरंगजेब्स मिलिटरी कैंपेन्स. वी हैव सीन अबाउट these campaigns in third video. Okay. Then Deccan policies. After it we have seen administration and then central administration. Then important officials. Who were the important officials in the court of Mughal? Emperor, the king, wazir, prime minister, diwan, head of the revenue department, mirbakshi, in charge of military, khani samam, attended to the needs of the royal household. Then sadar maintained records of grants and donation made by the emperor, and Qazi, chief judge. Okay. Then we have seen about the provincial administration. After it we have seen about army administration. Okay. Then mansabdari system. After it we have seen about revenue administration. Okay. Then land revenue. And then तोदरमल्स बंदोबस्त. ओके. क्या बंदोबस्त किया था, क्या सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी तोदरमल ने, ये भी हमने यही वीडियो में देखा. ओके. देन वी हैव सीन इकोनॉमिक एंड द सोशल कंडीशंस. एंड देयर वर मुगल कोर्ट, सेरेमोनियल कोर्ट. ओके. देयर वर टू टाइप्स ऑफ द हॉल्स इन मुगल कोर्ट्स. one was there the diwan e khas and the second was there the diwan e am. Okay. After this we have seen about the agriculture. It is the last topic of this lesson. Okay. Now we should solve the exercise here. MCQs, multiple choice questions. Tick the correct options. First, fill in the blanks. Was the first Mughal emperor? Who was the first Mughal emperor? There are three options. Shahjahan, Akbar and Babur. C option is the answer here. Okay. Babur was the first Mughal emperor. Then second, fill in the blanks. Was the main architect of the land revenue system under Emperor Akbar.
एंड ये जो अकबर थे एम्पिरर, इनके पीरियड में कौन थे मेन आर्किटेक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू? तोदरमल. Okay, there are three options: Birbal, Raja Todarmal and the Jahangir. B option is answer here, Raja Todarmal.